So now we are starting with 1.2 sexual reproduction in plant. Vegetative reproduction in plant, that is asexual reproduction. 1.1 वो हमने last time clear किया था, complete किया था. Now we will start with the 1.2 sexual reproduction in plant. So sexual reproduction in plant involves a fusion of two compatible gametes or sex cells. All organisms reach to the maturity in their life before they can reproduce sexually. Okay, so what's the meaning of a sexual reproduction? In a sexual reproduction, we want a male gamete and we want a female gamete. In term of a flower, okay, in term of a plant, the reproductive part of a plant is nothing but a flower. और flower के अंदर ही male gamete, that is nothing but a pollen grain, जो कि आपको anthers के अंदर form होते हुए दिखेंगे. आफ्टर द पॉलिनेशन वो जो भी पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पर डिपॉजिट होगा? स्टिग्मा के ऊपर, और स्टिग्मा के अंदर होता है ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. सो इन दैट दिस ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओवल, जो कि फीमेल का गैमेट है. सो अल्टीमेटली मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा एंड इफ अ प्लांट इज फॉर्म, so this type of reproduction is called it as a sexual reproduction in plant. Now in a plant, end of juvenile or vegetative phase marks the beginning of reproductive phase and can be seen easily in higher plant at the time of flower. So plant के अंदर देखो क्या है कि हमने सीड को जो भी है स्टॉ कर दिया सॉइल के अंदर, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा. सो उसके अंदर पहले रूट का फॉर्मेशन होगा, स्टेम का फॉर्मेशन होगा, लीफ का फॉर्मेशन होगा, ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा. सो दिस फेज when there is a no flower, जब तक flower नहीं आ रहा है, so this phase of a plant is called it as a juvenile phase and vegetative phase. Once the flowering is came, जैसे ही उस प्लांट के अंदर फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएगा, so वो उसका पार्ट यानी कौन सा है? रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है. जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर दैट इज गैमेट का फॉर्मेशन, जब तक मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन उस मेल या तो फीमेल चाइल्ड में नहीं हो रहा है, so this is called it as a juvenile phase. तो वैसे ही प्लांट के अंदर जब तक फ्लावर नहीं आ रहा है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है, मेल और फीमेल, pollen grain और ओवल का फॉर्मेशन. So ultimately when a flowering is start, so this condition and that phase is called it as a reproductive phase of a plant. Now the next part, the flower is specialized reproductive structure of a plant in which sexual reproduction takes place. As like a human being having a reproductive organ, so the plant having a reproductive organ in the form of flower. So plant के अंदर flower के form में reproductive structure होता है. Okay, so वही part है. Flower is a specialized reproductive structure of the plant in which sexual reproduction is a take place, यानी कि fertilization हो. The function of a flower is to produce a haploid gamete and to ensure that fertilization will take place. तो यहाँ पर क्या होगा? So यहाँ पर haploid gamete का formation होगा. You can see that ये जो ovary है, ovary के अंदर यहाँ oval का formation होगा. So this oval is nothing but a haploid gamete, that is a female gamete oval. And यहाँ पर pollen grain, anther के अंदर जो pollen grain का formation होगा, that was a haploid male gamete in a case of a flower. So flower is to produce haploid gamete. इसका function है कि ये haploid gamete का formation करेगा with the help of meiosis and to ensure that fertilization will take. और ये फ्लावर ये भी इंश्योर करेगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, दैट पॉलिनेशन जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वो जो पार्ट है दैट इज पॉलन ग्रेन, वो स्टिग्मा पे गिरेगा और फिर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो फर्टिलाइजेशन होना भी जरूरी. Typically that flower, that is reproductive part of plant, consists of 4 different folds. Okay, so which are the 4 folds of a flower? So that is calyx, you can see in this part. So this green color part जो कि flower को protection देता है at the time of bud condition, that is called it as a calyx. And calyx contains so many sepals. यहाँ पर ये जो छोटे-छोटे part है that was sepal. Then the second part, that is corolla. You can see that in a flower, that attractive bigger part, colorful part of a flower, that is nothing but a corolla.
and the androecium, that is a male reproductive part in the flower, this is called it as the androecium, जो कि male gamete का formation करेगा pollen के, and the gynoecium which you can see that a carpel, तो ये जो part है that is the gynoecium, ये full part क्या है gynoecium, which will form a reproductive female reproductive part, यानी कि ये ovary के अंदर oval का formation. So these are the 4 different wall of the flower, essential and accessory wall of the flower. Now we will proceed with the next part. You can see that a sexual reproduction, okay, sexual reproduction in plant involves a 2 major events. That is the first one, that is meiosis and the fusion of gamete. Meiosis यानी क्या है? So meiosis कहाँ पर होगा? So जैसे मैंने male reproductive part, so male reproductive part of the plant that is anther, anther में क्या होगा? So anther में anthesis होगा और anthesis के बाद वहाँ pollen grain का formation होगा, that is male reproductive part. Okay, so this is called as a meiosis in term of a male part और वहाँ pollen grain का formation. Then फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो ओवरी है, ओवरी के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओवल. सो दिस इज नथिंग बट, तो फर्स्ट वन जो फेज है ये मियोसिस है और मियोसिस से क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन. नाउ आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड जाइगोट. यू कैन सी दैट ये पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है, ये स्टिग्मा पे गिरा, फिर ये पॉलन ट्यूब का देखो फॉर्मेशन कर रहा है और फिर ये जो न्यूक्लियस है ये कहाँ पे आ गया? ओवुल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये ट्रांसफर हो गया. सो दैट इज कॉल्ड इट एज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. और ये फिर डिप्लॉयड जाइगोट, हैप्लॉइड गैमेट और हैप्लॉइड न्यूक्लियस, पॉलन ग्रेन का और हैप्लॉइड न्यूक्लियस वाला पार्ट ओवल का, दोनों भी एक जगह आके जाइगोट का फॉर्मेशन. नाउ आफ्टर दैट द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग, और फिर इसका डेवलपमेंट ओवल का आगे जाके क्या हो जाएगा? सो इसमें आपने देखा ये सीड में डेवलप हो जाएगा पूरा पार्ट फ्रूट बन जाएगा और फ्रूट में क्या रहेगा? सीड रहेगा और ये सीड से फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन. सो दीज आर द इवेंट which is take place at the time of reproduction. Okay, plant के अंदर जब reproduction होगा तो ये सब event होना जरूरी. Now the next part, what was the sexual reproduction का main aim क्या है? What was the difference between the asexual and sexual? Asexual reproduction requires only one parent और वहां पर जो भी फॉर्म होगा नया, जो भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा, that was genetically similar, यानी कि न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन नहीं होगा, वैरायटी का फॉर्मेशन होगा ही नहीं. बट व्हेन वी आर टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर वेरिएशन होगा और नया फॉर्मेशन. सो वही पार्ट है, वेरिएशन आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सर्वाइवल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज ओवर अ टाइम. सो स्पीसीज के अंदर जो चेंज है वो कैसे होगा? सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन. और वेरिएशन कब होगा? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. Now the next part, sexual reproduction is characterized by fusion of male and female gamete, that is fertilization, which you can see in this picture also, जो कि आपको ये पिक्चर्स में भी दिख रहा है. देखो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिर रहा है, फिर इसका जो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और फिर जो ये मेल का न्यूक्लियस है वो फीमेल के ओवल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफर होता है. सो दैट इज फर्टिलाइजेशन. नाउ आफ्टर दैट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फिर क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और फिर जाइगोट विल फॉर्म एम्ब्रियोजेनेसिस और ये एम्ब्रियोजेनेसिस करके आगे जाके यू कैन सी दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड इनसाइड ऑफ फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड का फॉर्मेशन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, sequential event that occurs in a sexual reproduction are grouped into a 3 distinct stage, that is pre-fertilization. Pre-fertilization मतलब क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन, मेल का गैमेट यानी एंथर में एंथेसिस होगा और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा और जो ओवल है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवल का फॉर्मेशन. नाउ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? विच यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो, कि फर्टिलाइजेशन के टाइम ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पे गिरेगा, इसका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और फिर ये जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ये ओवल के अंदर ट्रांसफर कर देगा. सो दैट इज नथिंग बट अ फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फिर इसका जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद ये आगे जाके क्या करेगा? सीड का प्रोडक्शन करेगा. ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ
प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये आगे हमको पूरा डिटेल में देखना है, ये तो वहां पर पूरा का पूरा और भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये वीडियो से थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, diploid sporophyte is the predominant plant body in all angiosperm। तो यहाँ पर एक पहले तो ये वर्ड आ गया एंजियोस। Now what's the meaning of angiosperm? Angiosperm means they having a flowering, जिसके अंदर flowering और जो fruit होता है उसके अंदर seed होगा, so that is angiosperm। Okay, where meiosis take place to produce a haploid spore। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, diploid sporophyte is the predominant plant body। Sporophyte, so you can see that in there, in this diagram there is a two diploid, यानी क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर है ये डबल रहे। गैमेट्स में कितने होते हैं? सो गैमेट में सिंगल होता है। मियोसिस से गैमेट फॉर्म होता है। सो मियोसिस यानी कि अगर मैं पॉलन ग्रेन का एग्जांपल ले लूं, या तो फिर मैं दूसरा एग्जांपल में ओवल का ले लूं, तो ओवल के अंदर जो नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो हाफ है। सो वहां पर एन नंबर देखो, यहाँ पे दिया है जो एन नंबर, यहाँ 2n। सो ये स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट यानी क्या है, तो हमने सीड लगा दिया, तो सीड वाला जो सेल है उसके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्या सेल हो, क्रोमोसोम हो। फिर उससे क्या होगा, स्पोरोफाइट, तो अलग अलग पार्ट के फॉर्मेशन होंगे। स्पोरोफाइट यानी कि वहाँ एंथर, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ गायनोशियम। फिर वो पार्ट कैसे है, तो वो 2n नंबर वाले। फिर इसके अंदर क्या होगा, ये जो स्पोरोफाइट है, तो देखो स्पोरोफाइट में दो टाइप है। मेल का जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज माइक्रोस्पोरोफाइट, जो आगे जाके माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। और जो फीमेल का स्पोरोफाइट होता है दैट इज मेगास्पोर, जो कि साइज में बिगर होते हैं, ये ओवल का फॉर्मेशन। नाउ diploid sporophyte is a predominant plant body in all angiosperm where meiosis, अब देखो यहाँ पर you can see that ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है, यहाँ पर क्या हुआ, meiosis, और meiosis से इसने क्या फॉर्मेशन किया, तो you can see that there is a formation of a sperm, यानी कि यहाँ pollen grain का फॉर्मेशन होगा। अगर ये कौन सा पार्ट है, ये प्लांट का पार्ट है, तो यहाँ pollen grain। सो यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन, you can see that there is a microspore, जो मेल का पार्ट है दैट इज माइक्रोस्पोर, और मियोसिस से फॉर्म हुआ, तो इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे, सो दैट माइक्रोस्पोरोफाइट विल फॉर्म, यानी कि ये स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड है 2n नंबर वाला, इसने क्या किया, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन, एंड दैट फ्रॉम गैमेटोफाइट। और फिर ये आगे जाके फिर क्या होगा, हाँ ये जो कंडीशन है दैट इज गैमेटोफाइट। यहाँ पर हमने लिया मेगास्पोरोफिल, यानी कि ये मेल का पार्ट, फीमेल का पार्ट है, और फीमेल का पार्ट फिर क्या करेगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन। सो दीज आर द स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर क्या रहेंगे, हैप्लॉइड। सो स्पोरोफाइट इज द डिप्लॉयड स्टेज, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल है, और वो मियोसिस से क्या करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज इन एंजियोस। नाउ द गैमेटोफाइट आर कंसिडरेबली reduce and develop into the flower and they produce the gamete। और फिर आगे के स्टेज में फिर इससे क्या होगा, यू कैन सी दैट ये जो स्पोर है, ये फिर गैमेटोफाइट में ये जो है आगे के स्टेज में क्या करेगा, गैमेट का प्रोडक्शन करेगा। यू कैन सी दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एग यानी ओवल, और यहाँ पर जो भी है मेल का पार्ट दैट इज पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। ओके, सो वही पार्ट यहाँ दिया है। गैमेटोफाइट आर कंसिडरेबली रिड्यूस एंड develop within the flower and they produce the gamete। okay, so this is all about this slide। ये आपके पार्ट में ऑलवेज रिमेंबर करके एक छोटा सा पार्ट दिया था, जो मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली बताया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट अ मिनट,